सलाम दक्कन में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। कर्नाटक जमाते इस्लामी हिंद का बयान आया है। तंजीम के रियासती सदर ने नए बदलाव को बेहतर तो बताया, लेकिन उसे जाफरानी लबादे में लपेटने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में जिस तरह से कई गैर मुल्की जबानों को तरजीह तो दी जा रही है, लेकिन उर्दू और अरबी को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, जो एक सेकुलर मुल्क के लिए सही नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि बाहर मुल्कों में काम करने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अरब मुल्कों में रहते हैं, जहां उन्हें अरबी जबान की जरूरत होती है, लेकिन सरकार इसे दूसरे नजरिए से देखकर दरकिनार करना चाहती है, जो कि सही नहीं है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज होने से पहले लगातार मुखालफत हो रही है, जबकि सरकार इसे किसी भी सूरत में नाफिज करने का ऐलान कर रही है। There are a lot of positive sides to this policy by way of modernization and technology and education for all and raising the standards of schools and teachers. They are welcome steps, but they would take a long time. But implementing it in a haste without proper consultation, without taking into view alternate views is something which is undemocratic, we feel. This policy is talking more about ancient culture rather than talk about the constitutional values and the goals of and the ideals of secularism and respect to all religions, which is the hallmark of our constitution. इस मौके पर उर्दू और अरबी को लेकर क्या कहा जमात इस्लामी कर्नाटक के सदर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। This policy is talking more about the ancient culture and language policy also. Instead of promoting all languages, there seems to be a preponderance for Hindi and Sanskrit. There is neglect of Urdu, we feel, especially in this policy. And whilst foreign languages of a very minor nature, like Thai language and Japanese, has been promoted, Arabic, which is the language spoken by more than 20% of the world population, and where in the Gulf Muslims and our Indian citizens work in large numbers, that language has been neglected. And the mention of contribution of the Muslim period and the English period, and from independence to 2014, what all developments have taken place in the educational sector, they have been not taken care of, not even mentioned in the new education policy. So we request the government not to be in a haste, to give proper consideration, to continue the process of consultation, and especially when the syllabi are rewritten, we are worried that there should not be saffronization of the syllabus, and selective reading of history should not be there. अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ हामियों का एहतजाज जारी है। लगातार तीसरे दिन टीडीपी वर्कर रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। हालांकि इस इल्जाम से वाईएसआर कांग्रेस ने इनकार किया है। पार्टी लीडर रविचंद्रा ने कहा कि हमलावरों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन टीडीपी तर्जुमान का बयान सही नहीं है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले टीडीपी के कौमी तर्जुमान पट्टाभी राम के घर पर भी हमला किया गया। हंगामे के बाद रियासत के साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हुक्मरान जमात के हामियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि रियासत में जमहूरियत का दौर है या तानाशाही का। इस मामले की जिम्मेदारी सीएम और डीजीपी को लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। The YSRCP party has nothing to do with the attacks on TDP offices. The party condemns the outrightly abusive statements made by the TDP spokesperson against the CM. Such statements were never made against any leader in the history of our great nation. This is a new law. The party categorically denies any links to the attacks. Making such abusive statements against a loved CM and leader could have provoked fans of our beloved leader who have nothing to do with the party, but the party has absolutely nothing to do with what unfolded. आइए आपको सुनवाते हैं पट्टाभी राम के किस बयान पर रियासत में इतना हंगामा हो रहा है। The number of cases that are being registered across the country on the illegal trafficking of ganja, which is originating from Andhra Pradesh. We have seen how police from Telangana, from Chennai, had come into Andhra Pradesh to arrest
a few ganja smugglers. And recently, the ganja smugglers attacked the Telangana police in Visakhapatnam district. And the Tamil Nadu police were also attacked in Nellore district by ganja smugglers. And even the police in UP, Gujarat and various other states are openly saying, so this is very ridiculous. So this clearly shows that the AP government headed by Jagan Reddy is safeguarding the interests of ganja smugglers, but not the interests of the youth of the state. They are more interested in saving the ganja smugglers, not the youth of the state. उधर कर्नाटक में 25 अक्टूबर से प्राइमरी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। दर्जा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसको लेकर वजीर तालीम बी नागेश ने कहा है कि बहुत दिनों तक बच्चों को घरों में बंद कर नहीं रखा जा सकता। एक सर्वे में इसका बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ने की बात कही गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। It will start from 21st of this month. As many surveys has told us, the nutrition in their houses is not sufficient for the growth of the children. So, though we are taught that SOP, according to the SOP of COVID, mass kitchen has not been allowed. By the deterioration of the nutrition values in their food, we decided to start the midday meal from 21st of the month. And since we are continuing the classes from from morning to evening, we thought that good food should be required for the student. And we have started. We have taken extra care that all kitchens have been cleaned like anything, and we have taken extra care to see that. And the only practical problem is about the number on 21st or 22nd. Some disturbance may be for 2 days. Then after that, the whole thing will be saturated as it was going on earlier. Such system will come in. अब बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की। मुल्क में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। अक्टूबर के 20 दिन में से 16 दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इस महीने दिल्ली में पेट्रोल जहां 4 रुपए महंगा हुआ है तो डीजल की कीमत भी 5 रुपए 40 पैसे बढ़ गई है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत भी 95 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई है। 4 शहरों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मुंबई में है। यहां इसकी कीमत 112 रुपए 44 पैसे फी लीटर है। मुल्क की इक्तिसादी दारुल हुकूमत में डीजल 103 रुपए 26 पैसे फी लीटर मिल रहा है। चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 61 पैसे और डीजल 99 रुपए 59 पैसे फी लीटर मिल रहा है। तो कोलकाता में पेट्रोल 107 रुपए 12 पैसे और डीजल 98 रुपए 38 पैसे फी लीटर मिल रहा है। पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर की सतह को पार कर चुकी है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत करीब आधा दर्जन रियासतों में डीजल भी 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। पिछले 15 महीने में पेट्रोल डीजल कीमतों में 35% तक इजाफा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से पूरा मुल्क परेशान है। इसी कड़ी में हैदराबाद के लोगों ने अपना दर्द सुनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन से पहले से ही लोग परेशान हैं। ऐसे में बेरोजगार हुए नौजवान अब कहां जाएंगे। Every day I go to college, and because of this increased petrol rate, there is a lot of disturbance going on, and there's more traffic here, and I couldn't able to go to college every time. So that's it. डेली पेट्रोल रेट बढ़ रहा है। हमारे गरीब लोगों को तनख्वाह नहीं बढ़ रहा। हाँ, उन लोगों का जीना का बहुत मुश्किल हो रहा। ये पेट्रोल रेट एंड गैस रेट दोनों को बहुत बढ़ा रहा। थोड़ा कम हो रहा तो भाई अपने को थोड़ा सेफ्टी रहता। गरीब लोगों को थोड़ा सेफ्टी रहता। अमीर वालों को थोड़ा चलता, मगर गरीब लोगों को कहाँ चलता, नहीं चलता ना। Because of increase in petrol prices, so all the essentials and everything, transportation, all this will automatically increase. So it will have a very bad impact on the poor people, of course, low income people and middle class people. Even higher income also will have some kind of
impact on their economy and their livelihood and everything. I think so. बहुत मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत। पहले 2 साल से नो इनकम, ऊपर से ये इसके रेटा बढ़ रहे, गैस का, घर का गैस का, कैसा गुजारना जिंदगी, बहुत टेंशन की बात है नहीं। ये पेट्रोल के रेटा बढ़ने से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा। ऐसा गवर्नमेंट रेट बढ़ाते गए तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता। और कोरोना जो आया, कोरोना से हम लोगों का जीना बोले तो बहुत मुश्किल से जी रहे। और पेट्रोल का रेट बढ़ते गया तो हमारे को मुश्किल हो रहा। पेट्रोल गाड़ी कैसा चलाना हमारे को समझ नहीं आ रहा। रेट ऐसा बढ़ते गया तो हमारे को बहुत मुश्किल होता फिर आइंदा जाके। कोरोना महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान ने आज एक नई इबारत लिख दी है। आज हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज के आदाद शुमार को पार कर गया है। इस नए कारनामे से हिंदुस्तान आज वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे हो गया है। मुल्क में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज का दिन तारीख में दर्ज हो गया है। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आदादोशुमार पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए मुल्क के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद है। पीएम मोदी ने मेडिकल खिदमात से जुड़े सभी लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हिंदुस्तान आज वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे निकल चुका है, जिससे मुल्क भर में खुशी का माहौल है। जहां तेलंगाना और पुडुचेरी की गवर्नर तमिलिसाई ने इसके लिए पीएम मोदी और तमाम हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद दी है, वहीं हेल्थ से जुड़े कारकुनान और आम लोगों ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि सबकी कोशिशों से आज मुल्क में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जो लगातार जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई जो जोश और हौसला दिखाया जा रहा है, बहुत जल्द मुल्क कोरोना से आजाद हो जाएगा। The government is continuously motivating the people of Puducherry to get their vaccination, and we have reached we are reaching 80% of the first dose vaccination and 35% of the second dose vaccination, and we are aiming 100% vaccination because in the survey and in the scientists also convey that the people who are all immunized and who are all vaccinated, even corona attacks them also, they will be out of danger and there won't be any life-threatening complications. So we are propagating that, and there is still some hesitancy among the people, and second dose they are taking voluntarily, but even now people are hesitant to take first dose. So we are taking the list of those people who have not taken the first dose, and we are reaching out to their houses, and we are interacting with them. I myself went to a village today, and we are reaching out the people, and I appeal all the people to get the vaccinations. हमने 100% वैक्सीनेशन ऑफ द फर्स्ट डोज इससे पहले टारगेट अचीव किया है, और इसी कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेचुलेशंस करने के लिए गोवा के लोगों को संबोधित किया। गोवा के फ्रंटलाइन वर्कर्स को, गोवा के सभी हेल्थ वर्कर्स को, गोवा के बेनिफिशियरीज को अभिनंदन करने के लिए उनकी बात हो गई है। पहला फर्स्ट डोज तो 100% एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द सेकेंड डोज और एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट हमारा 30 अक्टूबर तक है। उसमें से 75% ऑफ द वैक्सीनेशन हम सेकेंड डोज भी लोगों तक पहुंचा सके हैं।
हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरे स्टाफ, कलेक्टर डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा टारगेट है ऑफ द 30th of October हम 100% वैक्सीनेशन ऑफ द सेकेंड डोज भी हम पूरा करेंगे। बेहतरीन है, अच्छा चल रहा बहुत है, लेकिन ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे चलने में बहुत फ़ायदा रहेगा। अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही रहेगा। पहला कंट्री है जो 100 करोड़ हो गया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत गिनीज बुक रिकॉर्ड है। कि ऐसे ही चलना बोल के उम्मीद कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इंडिया सबसे आगे वैक्सीनेशन में कंपेयर टू वर्ल्ड पावर जैसे यूएस एंड अमेरिका। इंडिया टॉप है और फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है इंडिया में, वो सबसे बेस्ट है। दूसरे कंट्रीज़ में जो है बहुत चार्जेस करते हैं और इंडिया में जो है सबसे फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और पुअर जो गरीब जो होते हैं उनके लिए भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का वैक्सीन दिया जा रहा है। और इंडिया का वैक्सीन जो है पूरे इंडिया वर्ल्ड में फेमस है और पूरे कंट्रीज़ भी जो है अपना इंडिया को है ना जो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो वैक्सीनेशन जो पेस चल रहा है एटलीस्ट मे बी न्यूजीलैंड के कंट्री के ऐसा पर वन डे में अराउंड करोड्स में वैक्सीनेशन चल रहा है, जो है बहुत अच्छी बात है इंडिया के लेवल के लिए। With respect to the achievement of the 1 billion vaccination in India till now, the main the achievement is being due to the vaccination is conducted everywhere throughout India on a regular basis with both two types of vaccines, Covishield and Covaxin, and the involvement of all the government departments and private hospitals. Everywhere the vaccination is being conducted, so that made the achievement to be successful. Yeah, India has achieved 100 crores vaccine target in less than 9 months' time, and we are very happy about it. I mean, any problems did people? I mean, did you face? Not really, not at all. So how is it? Is it your first dose or the second dose? This is my second dose. First dose also, like, we got it in less than 10 minutes' time, and it was absolutely smooth process through CoWIN app. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।